Let's shift focus now to another breaking update where a woman activist who was allegedly attacked by an unidentified man at Kozhikode Beach, where on Wednesday activist Bindu Amini has alleged that she was attacked by an unidentified person when she reached Kozhikode North Beach in connection with the court case. I'm told that Bindu Amini and Trupti Desai, both of the women activists, are joining us here on the broadcast. Bindu ji and Trupti ji, ma'am, can you hear me? Yes. Yes. Bindu ji, can you start telling us exactly what had happened? Because we are told that there was an attack on you by an unidentified person. What exactly happened? Actually, that was wrong. That is not an unidentified person. He was an identified person. He's member of RSS, active member of RSS, and local person of Velail. Velail is a place here at Calicut, near to Calicut Beach, and he's an active RSS person, and his name is Kuten. His nickname is Kuten, and I also know that all the information about that person, but the police says that he was an unidentified person. That is the approach of the police here at Kerala, and so many attacks. Actually, the 18th last 18th night, one auto rickshaw hit and run. That was a pre-planned incident. That was not an accident. The auto rickshaw came from the front side and hit me, and actually and some wounds in both the lips, and one of my teeth is also already damaged, and so many other incidents also happened, and I filed so many complaints in different police stations here at Kerala. But in all the cases, police approach is the same. Police is always trying to save the accused. The last day's incident also, the police is not ready to share the information about that person, and the police is not ready to arrest that person. They put only slight charges, only section 509 and 323. Both are bailable offense, and that is the situation here. We all are women, Dalits, and tribes. We all are not safe here at Kerala. The RSS have a dominance here in the defense force like police, and that is the situation. And so my request to all the persons, especially to the women, we always try to self-defense. Okay, keeping self-defense is the only way to prevent these incidents. I already shared this incident before this incident. Okay, before half an hour, I already shared there is such a presumption of attack, but the police keep silence. Police take any action for preventing that incident. Okay, so I'm not afraid. Okay, I'm not scared. I am ready to face this issue, and most of the leaders from some organizations also share personally. You decide individually decide to go to Shabarimala. Okay, so you also face the consequence. Okay, that is too painful. Okay, we know that the last election, the gender justice, and because of the Shabarimala entry, the government got more votes, and because of that, that is also one of the reason to they win in this election. But at the same time, my allegation is that they neglect all the positive aspect here happened, and they are under control of the RSS. All right, let me also bring in Trupti Desai on board. Trupti जी, इस घटना के बारे में आपको क्या कहना है, और जहां तक आप कहाँ थी जब ये ऐसी घटना रिपोर्ट करी गई? ये कोझिकोड सिटी पुलिस स्टेशन के बारे में भी बात हो रही है। नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब महिलाएं मंदिरों के प्रवेश के लिए आंदोलन करती है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद बिंदु जी, हमारी जैसी महिलाएं अगर मंदिर में जाने की कोशिश करती है, तो ये जो भक्त कहते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, तो महिलाओं को मारने वाले भक्त भगवान के भक्त नहीं हो सकते। कहाँ पे करें? वुमन सेफ्टी कहाँ पे है? बिंदु जी जब 2019 में मेरे साथ कोझिकोड के यहाँ पे आई थी, तब नीचे उनको तभी भी उनके ऊपर जो है वो मिर्ची स्प्रे किया गया था।
था। जब हम केरला में पहुंचे थे तभी लोग वहां पे मारने के लिए हमें आए थे। तो जब महिलाएं अधिकारों के लिए लड़ती है, मैं बोलूंगी कि ये सिर्फ महिलाओं के ऊपर हल्ला नहीं है, ये संविधान ने दिए हुए अधिकारों के ऊपर हल्ला है। जब मंदिर में नहीं प्रवेश मिलता है, दरगाह में प्रवेश नहीं मिलता है, हम सिर्फ महिलाओं को अधिकार मिले, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, अगर वहां पे प्रार्थना का अधिकार मिला है, जेंडर इक्वालिटी का अधिकार मिला है, तो उसके लिए अगर हम आगे आ रहे, काम कर रहे, तो आप हमारे ऊपर हमला करने वाले कौन है? जहां पे भगवान ने भी किसी में भेदभाव नहीं किया है। तो ये मानसिकता है कि जो महिलाएं आगे आती है, जो आंदोलन करती है, जो संघर्ष करती है, जो वहां पे काम करती है, उनको मिटा देना चाहिए, उनके ऊपर हमला करना चाहिए। बीच में महाराष्ट्र में हो या यहाँ पे भी हमने जब आंदोलन किया तो मुझे भी जान से मारने की कोशिश की गई थी, हमारे ऊपर गाड़ी के ऊपर हमला किया था, मेरे ऊपर अटैक किया था। तो ये कौन सी मानसिकता? 21वीं सदी में महिलाओं ने आगे नहीं आना चाहिए, ऐसे नहीं काम करने चाहिए? अगर काम नहीं किया तो महिलाओं का अधिकार कैसे मिलेंगे? 8 मार्च जब वुमन डे, इंटरनेशनल वुमन डे आप सेलिब्रेट करते हैं, सिर्फ बोलने के लिए? हम जो है वो कृति में काम करते हैं, एक्शन में काम होना चाहिए। और एक्शन में काम करने के लिए अगर कोई महिला या एक्टिविस्ट आगे आती है तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। ये मैं तो इस बारे में कहूंगी कि बिंदु जी के ऊपर जिसने भी कोई हमला किया है, जो वीडियो मैंने अभी देखा है, ये कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है। उनको जो है वो जान से मारने की कोशिश की गई है, तो वैसे ऑफेंस क्यों नहीं लगते हैं? जब ऐसे कोई अटैक किया जाता है तो पुलिस तुरंत वहां पे एक्शन क्यों नहीं लेती है? तुरंत एफआईआर क्यों दर्ज नहीं किया जाता है? किसी पार्टी को पुलिस जो है वो सपोर्ट कर रही है या ऐसे लोगों के बारे पीछे खड़ी रह रही है, तो ये गलत संदेश है। क्योंकि पुलिस जब काम करती है तो सबके लिए काम करती है, कानून सबके लिए समान है। तो ऐसे जब वीडियो आती है, जब महिलाओं के ऊपर हमला किया जाता है, उसे जान से मारने की कोशिश की जाती है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वहां पे लगने चाहिए और इस आरोपी को तुरंत जो है वो अरेस्ट करना चाहिए और ऐसे हमले ना हो। इसलिए केरला के मुख्यमंत्री जी ने भी अभी आगे जो है वो प्रयास करने चाहिए, क्योंकि केरला बहुत अच्छा राज्य है ऐसा हम मानते हैं, लेकिन अभी केरला भी जो है वो बिहार और यूपी जैसे हो रहा है। महिलाएं अगर केरला में सुरक्षित नहीं है तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने तुरंत वुमेन सेफ्टी के लिए आगे आना चाहिए और मंदिरों के लिए हमारी जैसे एक्टिविस्ट जो भी कोई काम कर रही है तो उनको जो है वो सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। अभी अगर बिंदु जी के ऊपर ऐसे अटैक हो रहे हैं तो उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ना कोई हमें प्रोटेक्शन देता है, ना हर बार हमले। मैं वही सवाल उनसे पूछती हूँ मैम। बिंदु जी, व्हाट हैपेंड टू द पुलिस इन्वेस्टिगेशन बीइंग कैरिड आउट बेस्ड ऑन द कंप्लेंट दैट हैज बीन फाइल्ड एंड weren't you given police security, ma'am? Actually, I have police protection by the order of Supreme Court. Okay, in that order, the two persons, Kanakadurga. Okay, but at the same time, they provide protection to Kanakadurga, not to me. Okay, because of my Dalit identity. I think so. And another thing is that the policies are always try to protect the accused. Okay. So I think this is of the influence of RSS and other Sangha Parivar groups. Okay, so I have a allegation against the involvement of this RSS persons and other Sangha Parivar persons, and also I planned to file a complaint to the Human Rights Commission. तृप्ति जी, ये बताया जा रहा है कि अटैक बिना किसी प्रोवोकेशन के हुआ, वो अपने काम पे डगर जा रही थी और उसके बेसिस पे बताया जा रहा है कि एकदम से हमला हो जाता है उन पर। ऐसे एक नहीं अनेक घटनाएं हो चुकी है। हाँ, इसके पहले मैंने आपको बोला कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। हम भी कहीं भी जाते हैं, कहीं भी लोग ये अटैक कर सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे सोशल वर्कर को ना कभी प्रोटेक्शन दिया जाता है। हमने कुछ कंप्लेंट करने के लिए हम गए तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया जाता है, ना उसके ऊपर कभी आगे जो है वो सुनवाई होती है, पुलिस कुछ सीरियसली नहीं लेती है। केरला में तो ऐसी सिचुएशन है कि अयप्पा स्वामी जी के जो भक्त है उनको ज्यादा से ज्यादा जो है वो उनको पूछा
जाता है। जब हम भी केरला में गए थे तब अटैक करने के लिए एयरपोर्ट के बाहर लोग आए थे जिनके हाथ में जो है वो छुरियां वगैरह थी, तो वो भी पुलिस के सामने सब चल रहा था, लेकिन पुलिस सिर्फ हमें प्रोटेक्ट कर रही थी, उनको अरेस्ट नहीं कर रही जस्ट थी। तृप्ति जी बने रहिए हमारे साथ 1 मिनट